پر ہمارے پاس جو جنزی آئیں گے تو یہ کسی کے خلاف کوئی برہمی کے لیے یا کسی سے کوئی مطالبہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آقا کی شان اقدس میں جو جلوس نکالے جانے والا ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے۔ مگر یہ کہیں جنزی بولتے لوگ سمجھیں گے ارے چل رہا ادھر پردرشن ادھر پردرشن، یہ پردرشن کا جلوس نہیں ہوتا۔ کسی کو بغیر ڈسٹرب کرے کے کل سے شروع کر سکتے سجاوٹ، فرسٹ سے شروعات ہے سجاوٹ، مگر ڈسٹرب کسی کو نہیں ہونا۔ ہاں جہاں ٹرافک کو ڈسٹربنس ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ایک دن پہلے موقع دیا جائے گا۔ یہ ہمارا تعلق جو ہے ہمارے جلوس کا نہ مطالبہ کسی گورنمنٹ سے برہمی کا ہے نہ کوئی محبت کا ہے، ہم صرف امن و امان چاہتے ہیں اور ہم آقا کی شان اقدس سے نسبت میں وہ جلوس نکالنے میں جو ہے وہ جنزی بوڑھے ضعیف سب شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہینڈی کیپ لوگ بھی ہمارے جلوس کا حصہ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ تو نوجوان تو ضرور ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ جلوس کے دو قسم ہوتے ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایک جلوس محبت کا ہوتا ہے خوشی کے لیے نکالا جاتا ہے، ایک جلوس برہمی کے لیے نکالا جاتا ہے۔ وہ برہمی کے لیے نکالا جاتا ہے، آج کل جنزی اس کا حصہ ہے، مگر ہمارے پاس جو حصہ رہے گا یہ خوشی کے اظہار کے لیے حصہ بنیں گے۔ تو ہمارے پاس جو بھی نوجوان ہیں کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جنزی ضرور شرکت کریں گے۔ ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں، جہاں 35,999 سے شروع بیٹری کی گاڑیاں ہیں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں۔ 12 ربیع الاول کو تاریخی مکہ مسجد سے بعد نماز ظہر مرکزی میلاد جلوس نکالا جائے گا۔ جلوس میں ادب و احترام محفوظ رکھے، خرافات سے بچے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران کی پریس کانفرنس۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست کو بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس نکالا جائے گا۔ اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں شمع محمدی کے پروانے عشق و محبت کے ساتھ شرکت کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سچی محبت و پکی عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے نعت پاک اور درود شریف کے نذرانے پیش کرتے چلیں گے۔ بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد کے پاس مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلہ جانشین حضرت سلطان الواعظین دعا کے بعد سبز جھنڈی دکھا کر جلوس کو روانہ کریں گے۔ چارمینار MLA میر ذوالفقار علی اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس جلوس میں شامل ہونے والی تنظیموں اور مذہبی اداروں کے ذمہ داران اپنے متعلقہ مقامات سے جلوس لے کر مکہ مسجد پہنچیں گے، جس کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی اور مرکزی جلوس روانہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک سے منسوب اس جلوس میں شامل ہونے والوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ باادب باوضو جلوس میں شرکت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنائیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کی صدائیں لگائے تاکہ جلوس کا تقدس برقرار رہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے صدر مولانا سید شیخ قادری شتاری کامل پاشا، کنوینر جلوس مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی نے آج گلشن مدینہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دیگر کئی سارے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے مرکزی میلاد جلوس پابندی کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام امن و محبت کو عام کرنے، اہل ایمان کے ساتھ دیگر برادران وطن کو بھی اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے کے یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ پیش ہے نمائندہ رپورٹر شیخ ابراہیم کی ایشین ٹی وی نیوز چینل کے لیے خاص رپورٹ۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز صحافی حضرات بشمول الیکٹرانک و پرنٹ یا مختلف پیجز پر چلائے جانے والا ذرائع ابلاغ، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم، نمسکار، گڈ ایوننگ۔ وعلیکم السلام۔ اب مجھ سے پیش رو ہماری مرکزی میلاد جلوس کمیٹی جو ایک باوقار انجمن ہے، اس کے پروخار جوائنٹ کنوینر جناب حضرت العلامہ مولانا سید شاہ احمد الحسینی سعید خادری صاحب المعروف سعید دکن آپ سے مخاطب کر رہے تھے۔ جو بھی جلوس کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی رائے ایز اے کنوینر اس کمیٹی کا خادم کی حیثیت سے
कि गोशे गुजार करता जाऊँ। हमारी भी यानी बिल्कुल किसी को बगैर डिस्टर्ब करे के कल से ही शुरू कर सकते सजावट, फर्स्ट से ही शुरुआत है सजावट, मगर डिस्टर्ब किसी को नहीं होना। हाँ, जहाँ ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए थोड़ा सा एहतियात के साथ एक दिन पहले मौका दिया जाएगा, यानी रोड पे सजाने भी रोड ब्लॉक होने का चांस है उसको एक आध दिन पहले। और फिर हमारे मिलाद पाक की खुशी का हिस्सा भी नहीं है कि जो है रोड़ा ब्लॉक करके जो है काम हम करें, खुशी का इजहार माने, वैसा भी नहीं है। ज़रूर वो एक दिन पहले अलबत्ता जो बड़ी सजावट होती है वो ज़रूर रहेगी। और ये डेकोरेशन के लिए बाज़ाब्ता जब कमिश्नर से मुलाकात हुई थी तो खास तौर पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन अलग से दिए तो उसमें बताए भी और वो लोग मंजूर भी किए इंशाल्लाह। और दूसरी वजाहत ये है कि आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि बच्चे करेंगे, मसाजिद के पास होएगा, आसार शरीफ की ज़ियारत होएंगी, खुतबे मिलाद होएगा, हर जगह का हमारे पास जितनी चीज़ें डेटा था वो तो अपडेट करें, लेकिन जो भी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि एरिया पीएस के पास में एक लेटर अपनी तरफ से दे देंगे। एरिया देते हैं पलट के, फिर पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास एसबी है, इंटेलिजेंस है, ट्रांसफर से खुफिया पुलिस सब अपने जगह से वो निकाल लेते लोग कहाँ क्या चल रहा है, इंतजाम खुद कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद के बाहर अगर आप कोई जलसा साल के 12 महीने परमिशन तो वहाँ पर लेना आपको है, इन्फॉर्म करना है। कहीं भी पब्लिक प्लेसेस खानखा में जनजी जो भी है, यानी नौजवानों का जो जिक्र किया है, ज़रूर नौजवान हमारे मुल्क की ताकत बल्कि हमारे मुल्क की कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पर हमारे पास जो जनजी आएंगे तो ये किसी के ख़िलाफ़ कोई बरहमी के लिए या किसी से कोई मुतालबा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आका की शान अक़दस में जो जुलूस निकाले जाने वाला है उसमें शिरकत करने के लिए आएंगे। और ये हमारा ताल्लुक़ जो है हमारे जुलूस का ना मुतालबा किसी गवर्नमेंट से बरहमी का है ना कोई मोहब्बत का है, हम सिर्फ अमन व अमान चाहते हैं और हम आका की शान अक़दस से निस्बत में वो जुलूस निकालने में जो है तो जनजी बूढ़े ज़ईफ़ सब शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह का ये शुक्र है कि हैंडीकैप लोग भी हमारे जुलूस का हिस्सा होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौजवान तो ज़रूर हमारे लिए काबिल क़दर है, मगर ये कहीं जनजी बोलते लोग समझेंगे अरे चल रहा उधर प्रदर्शन इधर प्रदर्शन, ये प्रदर्शन का जुलूस नहीं होता। जुलूस के दो किस्म होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक जुलूस मोहब्बत का होता है, खुशी के लिए निकाला जाता है, एक जुलूस बरहमी के लिए निकाला जाता है। तो बरहमी के लिए निकाला जाता है, आजकल जनजी उसका हिस्सा है, मगर हमारे पास जो हिस्सा रहेगा ये खुशी के इजहार के लिए हिस्सा बनेंगे। तो हमारे पास जो भी नौजवान हैं कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो कि जनजी ज़रूर शिरकत करेंगे, क्योंकि नौजवानों के कायद हमारे जो है मजहबी एतबार से हमारे सईद कादरी साहब भी नौजवानों के लेके निकलते हैं। हमारे पास भी जो है नौजवानों की काफ़ी तादाद होती है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी तो नौजवान ही हैं, कामिल पाशा सदर है वो भी नौजवान है, मोतबर साहब तो माशाल्लाह नौजवानों में नौजवान है, पूरे नौजवान ही से अल्लाह करम से, मगर पूरी अमन और सुकून के साथ जो है जलसे और जुलूस का हिस्सा रहेंगे और इंशाल्लाह पूरा अमन तरीके से जो है इख्तिताम को करेंगे। मरकज़ी मिलाद कमेटी का ये इजलास, इसमें कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान ने तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि पुरअमन तरीके से हमारे मक्का मस्जिद पहुँचते हैं। यहाँ हाफ़िज़ साहब के घर से भी जो मरकज़ी जुलूस निकलता है ठीक 9:30 बजे वक्त मुकर्रर पर यहाँ से निकले तो मस्जिद पहुँचने में सहूलत होगी। और इसको तमाम कमेटी के ज़िम्मेदारान पुरअमन तरीके से इसको कामयाब बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा कारपोरेटर और वर्कर्स की हैसियत से मजलिस के तमाम वर्कर्स इस जुलूस की कामयाबी के लिए हमेशा से साथ रहे हैं मरकज़ी मिलाद कमेटी के, और आज भी जो है सो इसको पुरअमन बनाने के लिए और इसके नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए जमातन मसरूफ़ है। करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक की खुशी व मसरत में हर साल मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकज़ी मीलाद जुलूस का एहतमाम किया जाता है। और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ 26 अगस्त 2026 यानी 12 रबीउल अव्वल के रोज़ इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकज़ी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा। वहाँ पर
बाद नमाज ज़ोहर इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। और इस साल इंशाअल्लाह ताला जो आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तादाद है उसमें कई गुना इजाफा होने की पूरी तवक्को है, क्योंकि 3 साल के बाद में इस साल 12 रबीउल अव्वल को अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मिलाद जुलूस का अहतमाम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जुलूस में 95% जो शुरका है वो तमाम नौजवान है, जोश व जवलवले अक़ीदत व एहतराम वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये साल भी हम तमाम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि इस जुलूस में न सिर्फ आप शिरकत फरमा कर इसको कामयाब बनाएं, बल्कि एक मिसाली जुलूस बनाएं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नौजवानों की जो ताकत है, नौजवानों की जो सलाहियतें हैं, उसको बेहतरीन अंदाज में हम इस मिलाद जुलूस में उसका हम इस्तेफादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हर तरफ जेनजी का जिक्र है, तो हमारा मरकज़ी मिलाद जुलूस शुरू से जेनजी ही की एक ये नुमाइंदगी करता है, इंशाअल्लाह ये भी करेगा। मज़ीद मालूमात आपको इंशाअल्लाह ताला रूट्स वगैरह हमारे कन्वीनियर और सदर मोतमद और जॉइंट सेक्रेटरी साहब ये तमाम आपको मुखातिब करेंगे। मैं अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ तशरीफ़ लाएँ, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए तशरीफ़ लाएँ, बावजू और गुस्ल के साथ तशरीफ़ लाएँ, बेहतरीन इतर लगा कर आएँ, बेहतरीन सुरमा लगा कर आएँ और सरकार की नाते पाक पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत की नारे लगाते हुए इस जुलूस में लाखों की तादाद में तशरीफ लाएं और इसको कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।